talk about what are futures. On the internet, you will find a lot of information out there, and I'm not going to go into definitions and technical terms for what is futures in the derivative market. What I'm going to do is I'm going to tell you about my personal experience, how I'm earning 5% a month, that is 60% a year before tax. So around 30% after tax. So you can imagine the amount that I invest within 3 years by compounding, it's going to get doubled. And that's how compounding works. If you have not watched my compounding video, you can go and watch it here on the link above. Now, coming back to futures. ये futures होता क्या है, right? ये बचपन से चला आ रहा है, ये नया कुछ नहीं है. So for example, I am a farmer. I am farming on a land which is small. I generate on an average 100 bags of wheat per year. Okay, so per year I am generating 100 bags. One investor comes to me and tells me that on worst day, I know your output gets sold at 50 rupees, right? So you earn 100 into 50 is 5,000 rupees you earn. On best day, your output gets sold at 200 rupees. That means 100 into 200 is 20,000 rupees, 20,000. So your range is from 50 to 200. All right. Now, what he is proposing to me is, I'll give you a starting capital. Okay. I'll give you some starting capital to invest in good seeds, good fertilizers, good plowing equipment, blah, blah, blah. But the caveat is you have to sell all your output, which is 100, 110, whatever, to me at 100 rupees. मतलब वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा रेंज 200 अपर लिमिट है तुम्हारा और 50 तुम्हारा लोअर लिमिट है, वर्स्ट केस बेस्ट केस, और तुम्हारा आउटपुट जनरली 100, 110, 105 के आसपास बैग्स बनता है तुम्हारे उस लैंड में. ओके, अब मेरा ये कहना है कि वॉट एवर द आउटपुट, समझ लो 100 है, 100 के 100 पूरा तुम मुझे बेचोगे, कहीं और नहीं बेचोगे. दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 रुपीज. तो 100 into 100 10,000 तुम कमाओगे उस पर. और ये फैसिलिटी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं अभी बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट? You have not plowed the farm, you have not bought the seeds, pesticides, blah blah, nothing. So he is giving me 100 into 100 का 1/3. तो वो क्या करता है, वो बोलता है भाई I'll give you 3,000 rupees as a starting. The farmer gets very happy. उसको तो starting capital मिल गया business के लिए. And he knows worst case क्या है, अगर बारिश नहीं हुआ, there was no proper output, then I'll get only 5,000. So here I am getting at least 10,000, 100% guaranteed, right? So both ways, both parties are happy, and this is a mutual trust between them, and they carry out business. होता क्या है? Let's assume normal हुआ, एक 100 output निकला, and it was a good crop. That means he could sell, the landlord could sell that crop for 200 rupees. तो इसमें landlord का investment था 10,000. Initial investment उसने अपफ्रंट दिया 3,000, इसने उसको पे किया 10,000, बट ही सोल्ड द एंटायर आउटपुट एट 20,000, राइट? सो दैट मीन्स हिज प्रॉफिट वाज 10,000. सो दिस वाज कैरिड आउट अर्लियर डेज. इन अर्लियर डेज दिस वाज कैरिड आउट. अभी कमिंग टू आवर टॉपिक, विच इज एन एनालॉजी ऑफ दिस, फ्यूचर्स इन डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स दो तरह के रहते हैं, एक ऑप्शंस रहता है, एक फ्यूचर्स रहता है. यूजुअली व्हेन यू डू दिस, इट हैज टू बी कंबाइंड टुगेदर. This concept is a little difficult to understand. I'll cover it in the next video. But for now, just to understand futures is nothing but अब definitions में नहीं जाऊंगा. Futures क्या रहता है कि आप कोई भी इक्विटी मतलब शेयर्स जब खरीदते हो, there is a caveat कि आपको लॉट साइज में खरीदना है. आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद पाओगे. there is predefined lot for each share. तो समझ लो कि एक कोई भी कंपनी, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, कोई भी कंपनी ले लो, टेस्ला,
कुछ भी ले लो, उस कंपनी का शेयर प्राइस है सपोज 100 रुपीज, राइट? तो उसका लॉट साइज आप देख सकते हो, कोई भी ब्रोकर के साइट पे आप जाओगे, फ्यूचर्स के कॉलम में यू विल एबल टू सी द लॉट साइज. जनरली द लॉट साइज इज ह्यूज, सो दैट मीन्स अगर शेयर 100 रुपए का रहेगा तो जनरली लॉट साइज इज अराउंड 10,000 क्वांटिटी. अब होता क्या है, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है. यू आर द फर्स्ट पार्टी, योर बैंक इज द सेकेंड पार्टी, एंड ब्रोकर इज द थर्ड पार्टी. सो द कंसेप्ट इज there were 3 parties. When you're trading in derivatives, you have to buy, as I told, in lot sizes, which is for example, if I took an example of one share, XYZ share, will not name the share, XYZ share, price है उसका 100 रुपए, quantity lot है उसका 10,000. Now either you can buy in multiples of this lot, which is 10,000, 20,000, 30,000 and so on, और you can buy one lot. अब हम one lot का एग्जाम्पल लेके टेस्ट करते हैं कैसा होता है. ब्रोकर क्या बोलता है, आप 10,000 क्वांटिटी पे ट्रांजैक्शन करो और 100 रुपए का प्राइस है उसका, मतलब 100 इंटू 10,000 इज 10 लाख, राइट? आप 10 लाख पे ट्रांजैक्शन करो, पर आपको 10 लाख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उस पे आपसे सिर्फ 3 लाख रुपए लेंगे, मतलब 1/3 लेंगे. हम आपसे 1/3 ऑफ दैट अमाउंट लेंगे और हमारे पास रखेंगे इन अ मार्जिन अकाउंट. वो आपका ही अकाउंट है बट सेपरेट अकाउंट है, ब्रोकरेज अकाउंट से सेपरेट अकाउंट है. उस मार्जिन अकाउंट में वी विल कीप 1/3 ऑफ दैट प्राइस. जनरली 1/3 रहता है 90% ऑफ द टाइम. इट मे बी 35, 34, 38 वेरी होता है, बट जनरली 1/3 से डिवाइड करके हम करेंगे. So 1/3 of 10 lakh is 3,30,000. 3,30,000 we'll keep in the margin account, and we will also keep some additional hold, which is around 50,000 as a buffer. वो hold depends on the broker, कौन क्या broker है. कोई broker they are directly linked with the bank account, like HDFC Bank, so they don't need to keep that much hold. Whereas let's say ICICI, Kotak, what they do is they have a margin account where they go and ask you to just transfer the money in that margin account. वो बोलता हूँ कंसेप्ट क्या हो बफर का. 50,000 साइड में रखो, 3,30,000 1/3 है 10 लाख का, वो उसमें जमा हो गया. Now what happens is you can hold this future for 1 month, and you can, this is a contract, right? This contract is valid for 1 month. You can roll over that contract next month also and next month also. तो 3 महीने का रेंज रहता है. You can keep on rolling it, right? But rolling को कॉस्ट रहता है. Let's assume, इतने डिटेल में नहीं जाते, सिंपल ये कंसेप्ट करते कि आपको हाई प्रॉफिट चाहिए. आपका कंसेप्ट क्या है? आपका कंसेप्ट ये है कि आपको 5% कमाना है महीने को ऑन योर कैपिटल, बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न विथ कंपाउंडिंग. So if you have, imagine if you have 5 lakh rupees, ठीक है, 5 lakh rupees ऐसा है आपके पास, you want to invest. If you want to invest 5 lakh, you can invest in a share which has this example that I gave you. 100 रुपए का शेयर है, 10,000 क्वांटिटी है, you have to keep only 3 lakh in the margin account. 2 lakh बफर रखो, बाद में बोलते हैं उसका क्या करेंगे. 3 lakh रख दिया in margin, but you got a quantity of 10,000. That means कल अगर उस प्राइस is 100 रुपीज, अगर उसका प्राइस 5 रुपए भी हो गया, 5 रुपए भी बढ़ गया, राइट, यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. सिंपल कैलकुलेशन, 5 इंटू 10,000, क्योंकि खरीदा था 10 लाख को, बेचा था, वर्चुअली खरीदा है आपने पूरा अमाउंट नहीं दिया, पर 10,000 तो आपके पास आ गए क्वांटिटी. सो वेन एवर द प्राइस गोज अप, you will get that much profit. Obviously if the price goes down, you will get a notional loss of that much. तो 50,000 आपको जमा करना पड़ेगा. अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि वो जो 50,000 मैंने बफर के लिए रखा था ना, वो उसके लिए रखा था कि अगर लॉस हुआ तो वो भरता है. मतलब ऐसा समझ, डोंट थिंक दैट योर मनी इज लॉस्ट, राइट? इट्स जस्ट अ नोशनल, बिकॉज यू स्टिल होल्ड 10,000 क्वांटिटी, राइट? सो अनलेस एंड until you sell it, it's not registered in the profit and loss account.
So this is a daily transaction that takes place. Let's assume कि वो साइन वेव की तरह चल रहा है, 101, 102, 101, 102, 99, 94, 95, 100, 102, 100. तो क्या होता है जब 102 होता है उस दिन, तो ₹2 प्रॉफिट आता है उसमें, राइट? तो आपका वो जो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एवरेज ट्रेडेड प्राइस, तो वो बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है. बट व्हेन देयर इज अ लॉस, व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से एक रुपए से कम हुआ, 100 का 99 हुआ, यू हैव टू पे 1 रुपी टू द सेबी और यू हैव टू पे इट आउट. तो 1 इंटू 10,000 लॉस हुआ तुमको, तो 10,000 आपके वो जो 50,000 जो बफर था उसमें से 10,000 भर देंगे वो उस दिन. दूसरे दिन वो वापस भी दे देंगे. लेट्स से 101 हो गया तो वो 10,000 और एडिशनल 10,000 आपको आ जाएंगे. तो आपके इसमें नहीं आते, वो नॉमिनली आ जाते हैं उसमें. उस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन ब्रोकर मेंटेन करता है. तो उसका सोचो ही मत, इतना ही सोचो कि अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू व्हेन यू सेटल, जो भी फाइनल प्राइस रहेगा यू विल गेट द अमाउंट. तो इमेजिन यू बॉट इट एट 100, सोल्ड इट एट 105, ₹5 प्रॉफिट, 50,000 कमाया. सिंपल. 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल था 5 लाख. 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 मतलब 10%, 10% ऑफ योर कैपिटल यू अर्न. एंड दिस हैपन्स within 10 days or 5 days, right? So imagine the churning effect that you have. And always keep a stop loss. You can always keep a stop loss of 0.50. So it's a concept, I'll tell you, and this also has to be covered with options. Isliye options important. I'll tell you how to do it, but this is a rough concept. So quantity में लेते हैं बड़े, उसमें मार्जिन अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है. It is equivalent to having the shares, क्योंकि दोनों में नॉमिनल लॉस होता है. उसमें तो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, इसमें आपने एटलीस्ट 3 लाख इन्वेस्ट किया है और रखा है. सो दिस इज अ नॉर्मल कंसेप्ट. इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा. ये थियरी था एकदम लेमैन्स टर्म पे, नॉट नो डेफिनेशंस एंड सच, बट आई होप यू अंडरस्टूड. आई ट्राइड माई बेस्ट. जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्राइस देखेंगे, उसका लॉट साइज देखेंगे, हाउ इट वर्क्स, देन इट विल बी वेरी क्लियर. Alright guys, so thank you for patiently watching this video. Hit the thumbs up if you like it, and